Now, moving to the next system of the cockroach, that is the circulatory system, and the second one is the respiratory system. If I talk of the respiratory system और of the circulatory system, हमारे लिए सबसे पहली बात जो आई that was कि हमारे जो organisms थे अभी तक they have started aerobically respiring, but have the blood capillaries arrived? क्या हमारा ब्लड मूव कर सकता है एक वेसल्स के अंदर एंड फाइनली लेट the things go inside the oxygen go inside each and every kind of a cell? For that particular thing, if I talk of the cell, is the oxygen is moving inside this particular एक organ के पास हमारे systems का होना बहुत जरूरी है. So for that particular system to work on, हमने कहा कि जो हमारा कॉकरोच है, that cockroach is actually respiring, taking oxygen. ऑक्सीजन ले रहा है, ये ऑक्सीजन में ही कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगी. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो नीड टू एक्सपेल आउट. हम अपनी बॉडी को अगर कहें तो हमारी बॉडी तो बहुत सेल्फ सफिशिएंट है. हमारे पास नोज है, nasal cavity है. From nose, nasal cavity, the air comes in, goes to the pharynx area, goes to the larynx area, goes to the trachea, and then to the bronchi, and finally reaches the lungs. But do these cockroaches, they have this particular lung-like system? क्या इनके पास ये lungs present होते हैं? No, they don't have lungs. How do they breathe on them? If I have this cockroach, अगर ये cockroach हमारा, तो इसके पास यहाँ पे you have the holes present. Now, what are these holes called as? These are nothing but your spiracles. ठीक है, ये छोटे छोटे spiracles जो हैं, they will be helping out in the taking up of the oxygen. So these are your spiracles. The spiracles which will be हर जगह पे, ये आपके कल हमने करा था the scleroid plates and the tergite plates, जो हमने sternite बताया था, scleroid बताया था. तो इनके पास laterally यानी कि यहाँ पे you will be finding out these spiracles, and these spiracles they form, अगर हम अंदर की तरफ पहुंचे तो they have these tracheal tubes. ये हमारी क्या बन जाएंगी? These will be the tracheal tubes. And these tracheal tubes, if we say, they will further form the tracheoles. और छोटे हो गए, ये क्या बन गया? They form the tracheoles. So spiracles is taking oxygen to this tracheal tubes, which is taking the oxygen to the tracheoles. अब ये oxygen जो है, this will be given into this particular body system. ये ऐसे के ऐसे क्या कर दिया गया? लीव कर दिया गया. क्यों लीव कर दिया गया? Because this organism, this cockroach, has an open circulatory system. Open circulatory system की अगर हम बात करें तो open circulatory system refers to the non-presence of the capillaries. यहाँ capillaries, blood vessels जो हैं वो क्या होगी? Completely absent है. तो जो मेरा blood है, that is simply lying into the body, and that blood is a white blood. और ये जो white blood है, इसको हम क्या कहते हैं? We call it as an hemolymph. We call it as an hemolymph. For this cockroach, if I am talking of, what I say that this cockroach has the tracheal, the spiracles through which the oxygen will move into the tracheal tubes. From tracheal tubes, it will move to the tracheoles. Now, this tracheole, they'll drain up, they'll give up their whole oxygen into a fluid, and that fluid is hemolymph. Now, this hemolymph is now, bathing. It is actually making all the cells
अवेलेबल दिस ऑक्सीजन। अब उसी में ऑक्सीजन आ रहा है, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी डिजोल्व है। तो आप सोचो कि अगर this is the cockroach with the head, with the neck, this being the prothorax area, this being the last वाला area, the abdominal area। तो इसके पास यहाँ पे स्पाइरेकल्स आ गए। इन्होंने जितना भी अपना कंटेंट है, that whole content has actually poured inside, और इसके अंदर जो लिक्विड है उसी में ऑक्सीजन आ गया। इसी के अंदर आपका सारा ऑक्सीजन है, इसी के अंदर सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो आपका वापस आएगा वो भी एक मिक्स्ड ऑक्सीजन CO2 ब्लड होगा। तो क्यों? रीजन भी वो आपका पार्शियल प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल रहा है, लेकिन अंदर जो मिक्सचर बना ब्लड का, दैट इज नॉट अ प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज नॉट अ प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो है इस कॉकरोच की, वो क्या हो जाती है? कंपैरेटिवली इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो हियर इफ वी सी दिस एयर, और जो मेरा ब्लड पार्ट है, यहाँ ब्लड जो है वो सर्कुलेट अगर करेगा तो किसके थ्रू करेगा? दिस सर्कुलेशन विल बी अकरिंग थ्रू दी हार्ट ओनली। यहाँ कुछ और नया नहीं आ रहा, कोई कैपिलरीज नहीं आ रही। ये जो आपका हार्ट है, दैट इज मेड अप ऑफ दीज पर्टिकुलर चेम्बर्स, एंड हार्ट ऑफ द कॉकरोच इज 13 चेम्बर। कितने चेम्बर? जैसे हमारी बॉडी में व्हाट वी से वी हैव अ 4 चेम्बर हार्ट, बट इन दिस पर्टिकुलर कॉकरोच देयर इज 13 चेम्बर्ड हार्ट। और ये जो चेम्बर्स हैं इनकी ओपनिंग्स प्रेजेंट है। ये जो ओपनिंग्स होती हैं, दिस ओपनिंग इज नोन एज ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इनको? ऑस्टिया। तो हर एक ऑस्टिया से क्या जुड़ा होगा? एक अलग सा हमारा चेम्बर जुड़ा हुआ होगा। फॉर एवरी ऑस्टिया आई हैव एक ओपनिंग जो इसको रीजॉइन करेगी एंड विल फॉर्म दी अनदर, here you can see it is forming the another ostial chamber, the another heart chamber। और ये जितने भी मेरा हार्ट है ऐसे ही लाई तो करेगा नहीं, this will be however supported by the muscles। ये जो मसल्स इसको सपोर्ट कर रही हैं, these muscles they are known as the aliary muscles। तो हमारा जो ब्लड है वो इट विल बी मूविंग एज इन, अगर हम देखें ब्लड की मूवमेंट, तो जो हमारा ब्लड मूवमेंट होगा वो कैसे होगा? इट विल बी कमिंग हियर, यहाँ से नीचे गया, देन इट इज कमिंग अप एंड रोलिंग अप, इस तरीके से अप डाउन। द मूवमेंट ऑफ द ब्लड इज, यहाँ से भी आपकी इसी तरीके से हो रही है। एंड सर्कुलेशन का मेन काम क्या है? बस आपके ब्लड को हर जगह पे पहुंचाते जाना। जबकि जितना भी ब्लड है वो आपका सारा कहाँ प्रेजेंट है? इट इज ऑल प्रेजेंट इन दी ये जो आपका बॉडी कैविटी है, उस पूरी बॉडी कैविटी के अंदर ही आपका क्या लाई कर रहा है? ब्लड लाई कर रहा है। सो दिस ब्लड वेसल्स दे आर पुअरली डेवलप्ड and they are open into the spaces। जितना भी ब्लड है वो सारा फैला हुआ है। and this hemolymph, जैसे हमारे ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो ब्लड सेल्स दे आर, ब्लड जो है वो अगर हम बात करें तो ब्लड इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू प्लाज्मा एंड दी ब्लड सेल्स। तो यहाँ प्लाज्मा और हीमोसाइट्स, हीमो का मतलब ही हीमोग्लोबिन जैसे वर्ड के लिए हो गया, एंड साइट का वर्ड जो है, साइट मीन्स सेल, तो हीमोसाइट यानी कि ब्लड सेल्स आ गए। यहाँ नॉर्मली वी कैन नॉट से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स है, हमने नेम क्या दे दिया इसको? वी कॉल इट एज एन हीमोसाइट। एंड दिस जो ब्लड है हमारा, ये पूरा मस्कुलर ट्यूब में, ये एक जो ट्यूब आपकी है जो हार्ट है, दिस ट्यूब इट लाइज फ्रॉम थॉरिक्स टू एब्डोमेन। अब अगर थॉरिक्स से एब्डोमेन की तरफ लाई कर रही है तो आप मुझे एक बात बताइए कि टोटल थॉरिक्स थे कितने? हाउ मेनी थॉरिक्स दे वर प्रेजेंट? देयर वर 3, द फर्स्ट वन बीइंग द प्रोथॉरिक्स, द सेकंड वन बीइंग द मेटाथॉरिक्स, मेसोथॉरिक्स एंड द मेटाथॉरिक्स। और एब्डोमेन के पास कितने चेम्बर्स होते हैं, कितनी लाइंस होती है? द स्क्लेराइड्स प्रेजेंट आर टोटल 10, तो 3 + 10, तो टोटल, तभी हमने बोला कि तो टोटल नंबर ऑफ चेम्बर्स ऑफ द हार्ट इज 13 चेम्बर। तो ये जो एलियरी, ये जो आपके हार्ट चेम्बर्स हैं, दे आर ऑस्टिया,
they are having the pores ostia जो उसको कनेक्ट करिए, and the circulation of the blood जो आपका मूव कर रहा है वो इसके अंदर से ऐसे डाउन जाता हुआ ऊपर मूव करेगा. ब्लड के जो कंपोनेंट है दैट इज द ब्लड प्लाज्मा एंड हीमोसाइट. There are no perfect blood cells we can say. जो ऑक्सीजन मूव कर रहा है वो भी स्पाइरिकल से आता हुआ, that will go into the tracheal tubes, will go into the tracheoles, will be given into the hemolymph. हीमोलिम्फ इसको ऊपर लेके जाके डाउन की तरफ मूवमेंट कराएगा और सर्कुलेशन होती रहेगी, एंड ऑल सेल्स will be breathing like this only. So this was all related to the this particular concept जो कि आपका क्या है, that is the heart. अब हार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट है वो इंटीरियर पार्ट हो गया, जो पीछे नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, that will be called as an the posterior part.